ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ। ਹਰ ਗਾਓ ਮੰਗਲ ਨਿਤ ਸਖੀਏ, ਸੋਗ ਦੁਖ ਨਾ ਵਿਆਪੇ। ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਦਿਨ ਸੁਭਾਗੇ, ਆਪਣਾ ਪਿਰ ਜਾਪੇ। ਅਨਹਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਜਾਣੀ, ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਰਸ ਭੋਗੋ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮਿਲਿਆ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜੋਗੋ। ਹਮ ਘਰ ਸਾਜਨ ਆਏ, ਸਾਚੈ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ। ਸਹਿਜ ਮਿਲਾਏ ਹਰ ਮਨ ਭਾਏ, ਪੰਚ ਮਿਲੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਸਾਈ ਵਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਸੇਤੀ ਮਨ ਲਾਇਆ। ਅਨ ਦਿਨ ਮੇਲ ਭਇਆ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਘਰ ਮੰਦਰ ਸੁਹਾਏ। ਸਖੀ ਮਿਲਹੁ ਰਸ ਮੰਗਲ ਗਾਵਹੁ, ਹਮ ਘਰ ਸਾਜਨ ਆਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ, ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ, ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਆ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਾਮਦੀ, ਨੂਰ ਅਰਸਹੁ ਪੁਰਸਹੁ ਝਟੀਐ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਰ ਸਾਹਾਂਦੈ ਸਾਹੋ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਬੇਸਾਹੋ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਤਿਸਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨਿਧਾਨਾ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸ ਅੰਤਰ ਮਾਨਾ। ਤਿਸਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨਿਧਾਨਾ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸ ਅੰਤਰ ਮਾਨਾ। ਕਰ ਗਹਿ ਲੀਨੇ ਅੰਧਕੂਪ ਤੇ, ਵਿਰਲੇ ਕੇਈ ਸਾਲ ਕਾ। ਆਦਿ ਅੰਤ ਮਧ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ, ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਈ। ਭ੍ਰਮ ਭਉ ਮਿਟਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ, ਦਾਲਦ ਨਾ ਕੋਈ ਘਾਲ ਕਾ। ਆਦਿ ਅੰਤ ਮਧ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ, ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਈ। ਭ੍ਰਮ ਭਉ ਮਿਟਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੰਗ ਤੇ, ਦਾਲਦ ਨਾ ਕੋਈ ਘਾਲ ਕਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ, ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਵੱਡ ਭਾਗੇ ਹੋ ਜੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਧਰਤੀ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਲਮਗੀਰ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਅੱਜ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਐ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨੌ ਨਿਧਿ ਆਵੈ ਧਾਏ। ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। ਆਓ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੰਬੰਧੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਹ ਐਤਵਾਰ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ, ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਐਤਵਾਰ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਨਾ, 7 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। सफल जन्म तन आज को देव सरैन, ऐर मुहूर्त और घड़ी पल छाए हैं। सफल श्रृंगार चाल सेजा संजोग भोग, आगन मंदिर अत सुंदर सुहाए है। जगमग जोत शोभा कीर्त प्रताप शब, आनंद सहज सुख सागर बढ़ाए हैं। अर्थ धर्म काम मोख ने काम नाम, प्रेम रस रस कवै लाल मोरे आए हैं। प्रेम रस रस कवै लाल मोरे आए हैं। ना सवंज हो किल विखो करता कर आया, दूत दहन पया गोबिंद पलटाया। महान बख्शिश होई है सतगुरां दी, गरीब नवाज जी अमृत ਵੇਦ ਤੋਂ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਉਦਾਰੇ ਦੇ ਕੇ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੜੀਵਾਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਇਲਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ 8ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੱਕੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 7.5 ਪੌਣੇ 8 ਸਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਟੋਟਲ ਉਮਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਸਾਲ ਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇਰੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਡੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਵੀ। ਇੱਥੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਰਖ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਨ ਦੀ ਪਰਖ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੱਕੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਦਾਸ ਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਆਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਠਾਕੁਰ ਦਾਸ। ਠਾਕੁਰ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਹਰਦਾਸ। ਹਰਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ, ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 3 ਸਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 5 ਸਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ 2 ਸਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ 2 ਸਪੁੱਤਰ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। 7ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਧੀਰਮਲ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ 2 ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਧੀਰਮਲ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 2 ਸਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਥਾਨ 6ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਹਿਨੂਰ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 52 ਰਾਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਸੋਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ 7ਵੇਂ ਗੁਰੂ 8ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 7ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ 8ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ 9ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਾਵ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਮਹਾਨ ਪੁਰਖ ਯੋਧੇ ਸੂਰਬੀਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬੜੀ ਅਪਰੰਪਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਹਿਨੂਰ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਰਿਆ ਦਾ ਔਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਝਰਨੇ ਵਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਬੀ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਤਰਾਨੇ ਛੇੜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਵੇਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬੀ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 7 ਜੁਲਾਈ ਸਨ 1656 ਨੂੰ 7 ਜੁਲਾਈ ਸਨ 1656 ਨੂੰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਛੋਟੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਔਰ ਬਾਲਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਵਸਥਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤਾਂ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ, ਉਮਰ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ, ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਗਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਸਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੱਤ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ
एक अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा की अंश समझना, इस प्रकार जीवन नूं बतीत करना है। अजे सतगुरु जी तकरीबन 5 साल के सवा 5 साल के होए। पिता जी साहब श्री गुरु हरिराय साहब जी महाराज ज्योति जो समा गए। राम राय के बारे आप जी नूं याद है, बहुता नहीं लैना। उन्होंने बाणी की तुक बदल दिते। सतगुरां आख्या साडे मत्थे न लगे। 2 पुत्र ने गुरु हरिराय साहब जी दे। एक नूं ये गल आख दित्ती भी साडे मत्थे ना लगे, जिस पासे नूं मूँह है उस पासे नूं चलिया जावे। मूँह से लाहौर वाल नूं चलिया गया। मुड़ के घुम घुमा के देहरादून के इलाके दे विच आ गया। इत्थे अपनी एक गद्दी चला के गुरु बन के बह गया, मैं इस पासे ना जावां। ਜਿਹੜੇ छोटे ने गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज, उन्होंने बारे दसे सतगुरां ने बचन किया, जिहड़ा आप जी ने हुणे भाई साहब जी तो सरवण किया है। नाले आपां अरदास विच पढ़दे हां, श्री हरकृष्ण ध्याई है, जिस डिठै सब दुख जाए। एक नूं बचन किया मत्थे ना लगे, एक नूं बचन किया है जिहड़ा इन्हां दे मत्थे लगेगा, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ दर्शन करेगा ਉਹਦੇ तन ਦੇ ਵੀ ਤੇ मन ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ दुख दरिद्र कलेश मिट जाणगे। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू। उम्र जे छोटी है, बड़ियां चालां धार्मिक तौर ते राजनीतिक लोगों ने खेडियां। ये ते गुरु नानक देव जी महाराज के वेले तो चालां चलियां आउंदियां सन। इस गद्दी नूं खत्म किया जाए किसी भी ढंग तरीके दे नाल। 5वें सतगुरां नूं तत्ती लोह ते बिठाल देना, 6वें सतगुरां दे नाल जंग युद्ध करने, ये इसे कड़ी का हिस्सा बनते हैं। हुण वेखिया भी सतगुरां की उम्र बड़ी छोटी है, हुण एक हल्ला रल के मार दईए जिहदे नाल इह गद्दी हमेशा दे वास्ते खत्म हो जाए। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू। उम्र छोटी है, गुरियाई के सुभाएमान ने उम्र तकरीबन 7 साल की है, 5.5 साल की है। 5.5 सालों का बच्चा ये अनजान है, ये नहीं पता ना ये बूढ़ा ना ये बाला। निरंकार की खेड है जिहदे विच प्रहलाद भी 5 साल का सी, धरू भी 5 साल का सी जदों उन्हां नूं रब्बी ज्ञान हो गया। इस वास्ते जोत किसी दे विच ही वरत सकदी है। एक दिन समय के धार्मिक आगुआ ने एक कोड़ी लिया के सतगुरां के दरबार दे विच खड़ा कर दिता है। सतगुरु जी शामी कीर्तपुर साहब एक बाग सतगुर 7वें सतगुरां ने लवाया और उहदे विच सतगुरु जी शामां नूं टहलिया करदे सन। पालकी दे विच बिठा लैना प्रेमियां ने और सतगुरां नूं उस पार्क दे विच बाग दे विच घुमाउणा। कुदरत कला नूं वेख के सतगुरां ने बड़े प्रसन्न होना। एक कोड़ी नूं सिखा दिता कि तुसीं सतगुरां दे अगे जाके लम्मे पै जाना पालकी दे। ये आख देना गुरु नानक देव जी महाराज ने, उन्होंने कोड़ी राजी कीते ने। गुरु अमरदास जी महाराज ने कोड़ी राजी कीते ने। 5वें सतगुरु गुरु अर्जन देव जी महाराज ने तरन ताਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ कोड़ी घर बनाया सी और तुसी भी मेरा उधार करो, मैं तुहाडी शरण दे विच आया। उन्होंने सिखा दिता। चलो शामां नूं सतगुरु जी टहलण लगे, एक कोड़ी सतगुरां दी पालकी दे अगे पै गया। ख्याल सी जे कोड़ी राजी हो जाएगा असीं ये बोल आखांगे भी निरंकार वाहिगुरू परमात्मा की कुदरत कला उन्हां तो वखरा कीता इन्हां ने। जे ना राजी होवेगा आखांगे गुरु नानक देव जी महाराज की जोत ही नहीं इन्हां विच, वो शक्ति नहीं, वो ताकत ही नहीं। भाव दोनों पासे लड्डू रख के हत्थ दे विच ते एक कार्ज कीता है। एक कोड़ी सतगुरां दे चरणों के अगे ढह पिया, पालकी दे अगे लम्मा पै गया। सतगुरु आख्या भाई साइड ते हो जा, तेरे कर्मां दा फल है। कहन लगे महाराज कर्म भी तुसीं बनाउण वाले, लिखण भी तुसीं वाले ते मिटाउण वाले भी तुसीं। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू। सतगुरु आख्या नहीं भाई, हथ जोड़ता है तरले कढ़दा है। पहलों तो उपरों भेख करदा सी, ध्यान दिओ जे। पहलों भेख करदा सी, उपरों नाटक करदा सी।
ਹੁਣ सचमुच अंदरला हिल गया, अंदरों मन साफ हो गया, अंदरों तरला निकलिया। जो गुरु दरबार दे विच अंदरों तरला निकलता है फिर गुरु नूं परवान हो जाता है। बच्चा भावें किन्ना भी गंदा होवे, मां नूं प्यारा लगदा, गोदी विच पा के अपने कपड़े भी खराब कर लैंदी ते बच्चे दी सफाई करदी अपने हत्थां दे नाल, उहदी सारी गंदगी नूं धो दिंदी है। इस प्रकार जो मन साफ हो गया उदों सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहिब जी महाराज ने भाई दरगाह मल नूं आख्या, कहन लगे प्यार वालिओ इनू लै जाओ, उठा के इहदा इशनान कराओ, ये रुमाल लै जाओ, इस रुमाल दे नाल शरीर पोंछ दिओ और इनू आखो वाहिगुरु परमात्मा दा सिमरन करे। गुरु नानक देव जी महाराज दा उपदेश मूल मंत्र गुर मंत्र अपने जीवन दे विच दृढ़ कर लवे। अगे तो जेड़े वकार ते इन्हें कर्म कीते उन्हां तो तोबा कर लवे, ये तंदुरुस्त हो जाएगा। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू। इस प्रकार किया गया। भाई दरगाह मल जी, भाई नानू जी, भाई गुरबख्श जी, बाबा गुरदिता जी, बाबा बुढ़ा साहिब जी की आस बस विचों बाबा गुरदिता जी, उन्होंने पकड़ के इहदा इशनान कराया और सतगुरां की रहमत वरखी। नाल ही सतगुरां ने दवा ते दुआ दोने चीज़ां देतियां। रब अगे दुआ ते दवा जिहड़ी सी दवाखाना खोलिया सी उहदे विचों दुआ दित्ती। सतगुरां ने बहाना बनाता भी इहदे शरीर ते दुआ लाओ, ये निरंकार अगे दुआ करे और इहदा शरीर तंदुरुस्त हो जाएगा। कुछ समय दे विच तंदुरुस्त हो गया, इहदा जिहड़ा कोड़ सी मिट गया। सतगुरां नूं पुछया महाराज कोड़ क्यों होया है, इनू दुख क्यों होया? सतगुरु जी कहन लगे गुरु नानक देव जी महाराज का बचन है, जियो तब तय बारो बार, तब तब खपे बहुत बेकार, जैतन बाणी विसर जाए, ज्यों पक्का रोगी विल लाए। जो बाणी विसर जाती, रब का उपदेश ते सिक्ख्या विसर जाती है, मनुख अंदरों व्याकुल हो जाता है। याद रखो शरीर दुखी होवे ते कोई बहुता दुख नहीं होता, जदों अंदर व्याकुलता अंदर की चिंता आउंदी है वो शरीर के उपरले दुख नूं भी बहुत तात दे विच सिद्धा कर देंदा। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू। गुरु हर कृष्ण साहिब जी महाराज ने यह अपनी छोटी उम्र दे विच पहला कौतक कीरतपुर साहिब की धरती ते कीता। औरंगजेब बादशाह ने पहलों 7वें सतगुरां नूं सद्दिया सी, गुरु आप नहीं सद गए, वड्डे सुपुत्र राम राय नूं भेजिया सी। हुण फिर उन्होंने इन्हां ने लुत्तियां लाइयां भी छोटा जिहा बच्चा गुरु नानक देव जी महाराज की जोत गद्दी ते बैठा है, इन्हां नूं एक बारी सदो ते सारे कारज रास हो जाने ने। औरंगजेब बादशाह ने संदेशा भेजिया कि गुरु हरकृष्ण साहिब जी महाराज मेरे कोल आउण। 7वें सतगुरां ने ते पुत्र भेजिया सी, ध्यान देना। 8वें सतगुरां ने आख्या नहीं वो मत्थे ही नहीं लगना, नहीं जाना वो कोल। सिख सोचां दे विच पै गए, जे सतगुरु ना गए। औरंगजेब बादशाह का जुल्म का कुहाड़ा बड़ा तेज है, हुण वड्डे वड्डे मंदिर ढा के रख दिते ने, हिंदुआं का कतलाम करके जनेऊ ला रहा है। ऐसा ना किते होवे सिखां दा भी बुरा हाल हो जाए। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू। कच्चे पिल्ले सन, उन्हों के मन के विच ऐसा विचार आया, ये नहीं पता भी नानक कचड़िया सो तोड़, ढूंढ सज्जण संत पक्या। कच्चे सतगुरु जी कहते तोड़ते कच्चियां दे नालों। अज हेठां कभी उपर थले होंदे रहिंदे ने दीवे की लाड़ की तरह। इस वास्ते जदों भी सांझ पाउणी जिहड़ा पक्का परमेश्वर निरंकार है उहदे नाल पावे, जिहड़ा सदैवी रहण वाला। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू। सतगुरु आख्या ही तेनों असी मत्थे ही नहीं लाउणा, तेरे कोल जाना ही नहीं। फिर ध्यान दिओ, जे सतगुरु आख्या जाना ही नहीं तो फिर गए क्यों दिल्ली दे विच? बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू। सवाल पैदा हुंदा है। औरंगजेब बादशाह का सुनेहा भेजिया, हलकारा आया, उन्होंने सतगुरां ने जवाब दे दिता नहीं जाना, जो कुछ करना उसकी मर्जी कर लवे, असीं निरंकार वाहिगुरू परमात्मा के हुक्म दे विच नहीं जाना। पर फिर थोड़े समय तो बाद, थोड़े दिनों तो बाद सतगुरां ने दिल्ली नूं तैयारी कर ली। कारण सी
ਪਹਿਲੋਂ नहीं गए, हुण जाण लगे ने। कारण है कि दिल्ली दे विच चेचक की बीमारी पै गई। चेचक की बीमारी बड़ी भैड़ी सी। उन्हां समयां दे विच इलाज नहीं सी, हुण ते अजकल इलाज है। तकरीबन सारे ही जितने भी हस्पताल ने लिख के लाया भी चेचक की खबर देने वाले को 1000 रुपया इनाम दिता जाएगा। उदों बड़ी बीमारी भयानक होंदी सी। एक पासा मारिया जाना, अखां दे उपर दाग, चेहरे ते दाग पै जाने। उदों इहो गल आखदे सन भी हुण इहदा अंतिम समा आ गया, हुण रब नूं ही याद करो। आ जिहड़ियां साडीआं बीबियां भैणां बतावा ये माता दी रख रखदियां ने, उहदे विचों ही निकलिया होया है भी हुण नहीं इहने बचना। हुण किह जिहदा ਜਿਹੜਾ भी भगवान जी दा है उहदे अगे अरदास बेनती करो। उदों तो ही अरदास बेनती शुरू हो गई। सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहिब जी महाराज ने वेखिया कि दिल्ली दे विच चेचक बीमारी ने बड़ा भयानक रूप धारण कर लिया है और जे बादशाह दे हथ खड़े हो गए, बीमारी ते काबू ना पा सकिया। गुरु हरकृष्ण साहिब जी महाराज जिहड़ा गुरु नानक देव जी महाराज का मिशन है कि डॉक्टर ने इहो जे रिश्ते आपां हुणे थोड़े दिनां दे विच अखी वेखे ने। सो ऐसा ही उस समय होया। गुरु हरकृष्ण साहिब जी महाराज, भाई दरगाह मल जी, भाई नानू जी, भाई गुरबख्श जी, बाबा गुरदित्ता जी, भाई फेरू जी, भाई संगतिया जी इत्यादि, भाई मती दास जी, भाई मनी सिंह जी, जिन्हां दा बंद कटिया गया। इन्हां नूं सतगुरु जी नाल लैके माता किशन कौर जी, माता बस्सी जी ये नाल ते होर कुछ 94 सिखां नूं नाल लैके सतगुरु जी कीरतपुर साहिब की धरती तो चले ने। सतगुरु जी कीरतपुर साहिब तो चल के रोपड़ आए। रोपड़ तो सतगुरु जी खड़ तो बनूड़ तो सतगुरु जी पंजोखरा तो सतगुरु जी अंबाला तो सतगुरु जी कुरुक्षेत्र शाहबाज थानी, कुरुक्षेत्र तो पानीपत तो सोनीपत तो सतगुरु जी मजनू दे टिले तो राजा जय सिंह के बगले में चले गए। बोलो सतनाम सही वाहिगुरू। ये रस्ता लिया सतगुरां ने। आप जी नूं पता, मैं 2 घटनावां सतगुरां दे जीवन दे विचों होर कह देवां। सतगुरु जी अजे कीरतपुर साहिब दे वेसल अटक दी पशावर दी इस इलाके की अटक दरिया, आप जी जो पाकिस्तान किते गए होगे, जिन्होंने पंजा साहिब का दर्शन किया। पंजा साहिब जिथे धन गुरु नानक देव जी महाराज ने पंजा ला के पहाड़ नूं रोकिया है। वली कधारी का इतिहास पढ़िए तो उस तो अगला इलाका जिहड़ा अटकदा पैंदा है, उहदे नाल सिख इतिहास का बड़ा गूढ़ा संबंध है। इस वास्ते क्योंकि जदों गुरु के बाग का मोर्चा लगा, उस समय सिखां नूं प्रशादा पंजा साहिब के स्टेशन ते गड्डी रोक के 2 सिंघां ने अपनी जान दे के ते गुरु के जितने भी सिख संगतां गईयां सन उन्होंने अटकुंदा ने बचाउणा सी, कैद में सुटना, उन्होंने गुरु का लंगर छकाया, गड्डी रोक दी सी। 2 गुरमुखा प्यारियां ने उतों की सारी संगत ने मिल के इस इलाके की संगत आई। रस्ते दे विच एक चोर रल गया, उसका नाम सी जसवंत राय। चोर रल गया, ਉਹਦਾ ख्याल से भी रस्ते में विश्राम करनगे, जिथे सिख संगतां विश्राम करनगियां उत्थे जिन्ना क मेरा दा लगेगा, क्योंकि उस समय गुरुआं दे वास्ते अमोलक भेटावां इस इलाके दे विचों लिया करदियां सन, धन दौलत वस्त्र इत्यादि। ख्याल से भी जिथे भी दा लगेगा मैं उत्थों ही चोरी करके ते निकल जावांगा, भाव ये बना लिया। पर किते रस्ते में दा ना लगा, चलदे चलदे कीरतपुर साहिब की धरती ते आ गए। सतगुरां अगे नमस्कारां कीतियां, प्रेम भटावा सतगुरां दे अर्पण कीतियां। जसवंत राय ये भी सतगुरां दे सरमुख बैठ गया। गुरु हरकृष्ण साहिब जी महाराज ने रब्बी उपदेश दिता, कह लगे प्यार वालियो, चोर की हामा भरे ना कोए, चोर किया चंगा क्यों होए, सोण मड़न दे कुत्ते कुड़ियार, बिन बोले बूझिए सचियार। बोलो सतनाम सही वाहिगुरू। सतगुरु जी कह लगे
ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੋਰ ਦੀ ਹਮਾ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਚੋਰ ਹੈ, ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ। ਮਾਂ ਵੀ ਪਿੱਛਾ ਛਡਾ ਲੈਂਦੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਾਂ, ਮੇਰਾ ਜੇ ਪੁੱਤ ਚੋਰ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੋਈ ਹਮਾ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਹਮਾ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਮਾ ਨਹੀਂ ਭਰਨੇ। याद रखिए सोने का कंचन, सोने का चौका कंचन कुआर, ध्यान दो। सोने का चौका कंचन कुआर, रुपये की अकारा बहुत विस्तार, गंगा का उद करंते की आग, गरड़ा खाना 200 गाढ़, रे मन लेख कबू न पाए, जाम न भीजे साचे राय। जे तू भावें होम जग भी करदा होवे, सोने का तू चौंका बना ले, सोने का, सोने का चौंका। कंचन कुआर, कुआर का अर्थ है घड़े, जेडे पानी दे भर के लियावें घड़े, वो भी सोने दे होण, बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू। धातां दे विचों जिहड़ी सोना धात सब तो शुद्ध गिनी गई है, आ सारे काम तू शुद्ध ते चंगे करदा होवे। रुपये की अकारां बहुत विस्तार, ते जिथे तू ये जल पानी बनाउणा तैयार करना है, उत्थे चांदी दे नाल लकीरां कड्डे, चांदी दे नाल। दूजे नंबर की धात जिहड़ी वो चांदी गिनी गई है। रुपये का अर्थ है चांदी, रुपये की कारां, कारां का अर्थ है लकीर वाहनी। ये वैष्णो लोग जदों भी कोई प्रशादा तैयार करते ने, लकड़ा भी धो लेंदे, चुल्हा भी धोंदे ने, भांडे ते धोंदे मांजदे ने, फिर चाह सवेरे लकीर कट देंदे, कोई बंदा नेड़े ना आवे, बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू। उहदा परछावां ही ना पवे, परछावां पै गया साडा प्रशादा बनिया खराब हो जाना है। सतगुरु गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने चौंके रुपये की कारां बहुत विस्तार, गंगा का उदक, गंगा जिहड़ी पवित्र गंगा इन्हां दी हिंदू धर्म की मन्नी गई है। ਜਿਹੜਾ तू पानी लियावे वो भी गंगा दे विचों लियावे, पितर पानी होवे, सोना तेरे कोल होवे, चांदी दीयां लकीरां कढ़ियां होण, सोने दे भांडे ते बर्तन चौंका तेरा बनिया होवे, और जिहड़ा पानी तू वरतना प्रशादे दे वास्ते, लंगर दे वास्ते, वो भी गंगा दा तू वरते। गंगा का उदक, करंते की आग, करंता कहंदे ने होम जग करना, उहदे विचों जिहड़ी अग निकले। मैं ये बारे थोड़ी जानकारी दे देवां, भावें उन्हां समयां दे विच अग दा इन्ना प्रबंध नहीं सी, पर लकड़ दे विचों अग पैदा करदे सन। उदों लकड़ दे विच बांस दे विच थोड़ा कि छेक कढ़ लैना, बांस ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਧੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਨਿਕਲਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜੱਗ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣੀ, ਮਾਚਿਸ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ, ਰਾਤ ਦੀ ਅੱਗ ਦੱਬ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ, ਭਾਵ ਤਾਜ਼ੀ ਅੱਗ, शुद्ध अग, उन्होंने वरतना, उन्होंने करंते की आग आखदे ने। गंगा का उद करंते की आग, गरुड़ा खाना 200 गाढ़। बाकी पदार्थों को अशुद्ध बनया गया है, दुध नूं शुद्ध बनया गया, दुध नूं चंगा बनया गया। दुनिया के सारे पदार्थों उहदे उत्ते दुध धर देना, जदों गाढ़ा हो जाना फिर उन्होंने छकना भी बहुत चंगा पदार्थ छकिया, किहदे हथ नहीं लगे, पता नहीं कित्थों आया, किने बनाया होवेगा, कोई छूत जाति का, दूजा तीजा होर अधर्मी होर धर्म का ना होवे। इत्थों तक भी जे तू कर लवे, गंगा का उद करंते की आग, गरुड़ा खाना 200 गाढ़। रे मन लेखे कबू न पाए, जाम न भीजे साचे राय। तेरे किहे कम भी नहीं जे तू वाहिगुरु परमात्मा का सिमर नहीं किया। खाण लग्या तू निरंकार नूं याद नहीं किया। जो बिन सतगुर सेवे खांदे पहनदे, से मोए मर जम्मे कोड़े। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू। सतगुरु जी आखदे जिस रब ने तेनों पदार्थ दिता खाण वास्ते, चबाउण वास्ते दंद दिते ने, अंदर मेदा दिता है तेरा खादे नूं पचाउण वास्ते, अंदर रब सारी क्रिया कर्म कर रहा है। खाण तो पहलों एक बारी तो उन्होंने याद कर लै। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू। सियाणे मनुख अज भी जो प्रशादा छकणगे, भावें लम्मी चौड़ी अरदास ना करन,
वो आखदे निरंकार तू दाता दातार तेरा दिता खावना, इन्ना ही की आके छकला। जो नहीं खाते सतगुरु जी उन्होंने कोढ़ी कहते ने, वो मनुख कोढ़ी ने। जो बिन सतगुर सेवे खांदे पहनदे से मोए मुर जम्मे कोढ़े, वो कोढ़े ने जगत विच बन मर के जमदे ने, उस जूना दे विच आउंदे ने। सो जसवंत राय सतगुरां दे सन्मुख बैठा है। सतगुरु जी कहणगे अंतर मैल जे तीर्थ नहावै इस बैकुंठ न जाना। याद रखी अंदर बैल रख के तू तीर्थां ते घुमदा फिरे, किहे कम नहीं ते अंदरली अपने मन नूं साफ नहीं कीता। पर ये मत पापां के संग ओ धुप है नावे के रंग, वो नाम दे नाल धुपणी है। रब तो तू दूर चले गयो, चोर बन गयो। रब की दरगाह दे विच चोर का कोई हामा नहीं भरदा, इहदा अंदर हिल गया। सतगुरु जी उत्थे एक होर कौतक करदे, नंद चंद एक लगले इलाके का चौधरी सी, चौधरी जिन्हों प्रधान आखदे ने चौधरी। ये सतगुरां दे कोल है वकारी। उन्हां समय तकरीबन जिहड़े चौधरी सारे इहो जिहे हुंदे सन। अज भी वेखदे तकरीबन बहुतात दे विच इहो जिहे ने, सारे नहीं। ਇਹ सोचिया भी सतगुरु जी साडे नेड़े रहिंदे ने, चलो नाले लोग आखणगे धर्मी भी है भी उन्हां दे कोल जांदा है। बहुतात दे विच आपां आउणे आ, सतगुरां दे दर्शन कर लईए, संगत दे विच जा आईए। लोग आखणगे भी मत्था टेकण जांदा, बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू। अंदर भावना नहीं हुंदी, सिर्फ लोक विखावा। सतगुरां दे दरबार दे विच आ गया, ये लभदा भी मैं चौधरी हाँ, मैनू को मूड़ा पीढ़ी या होर स्थान बैठण वास्ते मिले। बाकी संगतां ते दौड़ियां ते बहिंदियां सन, मैं चौधरी उच्चे थां ते बैठ जाइए। सतगुरु गरीब नवाज ने तकिया, कभी इधर हिलदा है, कभी इधर हिलदा, कभी अगे जांदा, कभी पिछे जांदा है। मन उचाट गया, थकाव विच नहीं बैठदा। सतगुरां ने पावन शब्द उच्चारण किया, सगल पुरख मैं पुरख प्रधान, सगल पुरख मैं पुरख प्रधान। साध संग जांका मिटे अपमान, आपस को जो जाने नीचा, आपस को जो जाने नीचा। सो गरिया सब ते ऊंचा, जांका मनो सगल किरीना, हर हर नाम तेन घट घट चीना। मन अपने ते बुरा मिटाना, पेख सिट सगल साजना। जदों तू बुरा मन दे विचों मिटा देवेगा, सच वत संतोख तीर्थ ज्ञान ध्यान स्नान, दया देवता खेमा जप माली ते मानस प्रधान। सतगुरां ने सतगुण दसे दे, सतगुण मुखीए दे विच जे सतगुण उहदे विच हैगे ने, समझो भी वो मुखिया है, वो सियाणा है, वो दाना है, वो कौम की अगवाई करेगा, वो किसी परिवार की अगवाई करेगा, वो देश की अगवाई करेगा ते चंगे थां ते लैके जावेगा। जे उहदे विच इह 7 गुणां दे विचों गुण नहीं ते याद रखियो भी जिस नूं तुहां मुखिया मुगड़िया वो निकम्मा जे। बोलो सतनाम श्री बाणी आखदी है। पहला होवे सच, सच उहदे कोल होवे, झूठ ना बोलदा होवे, कूड़ दी राजनीति ना करदा होवे, सच वर्त संतोख तीर्थ। दूजा उहदे कोल संतोख होवे, भाव उहनूं कोई लालच ना होवे, तमा ना होवे, दूजे का हक खोण दी उहदी आदत ना होवे। सिर्फ ये होवे कि जो निरंकार वाहिगुरू परमात्मा ने दिता उहदे उपर सबर ते संतोख कर लै। सच वर्त संतोख तीर्थ ज्ञान ध्यान इशनान, 3 चीज़ां ये होण। उहदे कोल रब्बी ज्ञान होवे, जिथे दुनियावी ज्ञान है रब्बी ज्ञान होवे। फिर उहदे कोल ध्यान होवे, सुरत होवे, टकाव होवे, वाहिगुरू परमात्मा दे नाल जुड़दा होवे, ते फिर इशनान करदा होवे अंतर आत्मे दा, तन दा दी अंतर आत्मे दा रोज़ इशनान करवाउंदा होवे। भाव अरदास करते कीते होए गुनाहां नूं गुरु दे अगे रख देवे। मैनूं बचन एक याद आ गया सतगुरां दा। सतगुरां नूं पुछया, महाराज जी दसो कि जे दुख ना दूर हुंदा होवे, ध्यान दो 8वें सतगुरां दा आप जी प्रकाश दिहाड़ा मना रहे हो, जे महाराज दुख दूर ना हुंदा होवे फिर की करिए। कि सतगुरां ने जिहड़ा बोल आख्या बड़ा कमाल दा है
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੋਹਜ ਗਲ ਜੀ ਕੀ ਕੀਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਈਏ। ਜਿਹੜੀ ਗੋਝ ਗੁੱਝੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਪਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਖੋਟਾ ਕਰਮ ਕਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਾ ਕੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ, ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖ ਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਨੰਦ ਚੰਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਚੌਧਰ ਦਾ ਥੋੜਾ ਕੁ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈ, ਸੱਚ ਵਰਤ ਸੰਤੋਖ ਤੀਰਥ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਇਆ ਦੇਵਤਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦਇਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਣ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਿਮਾ, ਇੱਕ ਖਿਮਾ ਦਾ ਗੁਣ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਔਗਣ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਕਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਔਗਣਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਔਗਣ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੂੰ ਕੌਮ ਦਾ ਆਗੂ ਹੈ, ਤੂੰ ਘਰ ਦਾ ਆਗੂ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਗੂ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਖਿਮਾ ਦਾ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਮਾਨਸ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਨਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆਗੂ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਹਿੱਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਹਿੱਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂ ਅਤੇ ਕੋਇਲ ਦਾ ਫਰਕ ਵੇਖਿਆ, ਕਾਂ ਅਤੇ ਕੋਇਲ ਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਕਾਂ ਅਤੇ ਕੋਇਲ ਰੰਗ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨੇ, ਪੰਛੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਕਰਮ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਕੋਇਲ ਦਾ ਖਾਣਾ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ, ਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾ ਖਾਂਦਾ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕੋਇਲ ਬਹੁਤੇ ਔਗਣ ਕਰਦੀ ਜੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਧਿਆਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਔਗਣ ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਨੇ, ਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦੀ ਕੋਇਲ ਕਰਦੀ, ਕਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵਧੀਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਾਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਕੋਇਲ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਂਡੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੋਇਲ ਆਪਣੇ ਆਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ, ਕੋਇਲ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ, ਕਾਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ। ਕੋਇਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂ ਪਾਲਦਾ ਹੈ ਸ਼ਤਰੂ, ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ, ਪਰ ਕਾਂ ਕੋਇਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ। ਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਘਟੀਆ ਕੀਤਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਘਟੀਆ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਇਲ ਦਾ ਬਚਨ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਆਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਔਗਣ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ, ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਉਹ ਹੈ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ। ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਔਗਣ ਪੁੱਤਰਾ ਢੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਰਸ ਭਿੰਨਾ ਬਣਾ ਲਵੇਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਮਿਠਾਸ ਲੈਵੇਂ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੰਦਾ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣੇਗਾ, ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਬਣਨਾ, ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਰੱਖ ਲੈ। ਹੁਣ ਕੋਇਲ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਔਗਣ ਬਹੁਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੋਇਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਿੱਠ ਬੋਲਣਾ ਸੁਭਾਅ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆਨੰਦ ਚੰਦ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਕਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਗੁਣ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕੌੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਿੱਠ ਬੋਲਣਾ ਬਣ ਜਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਣੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾਮਦਾਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਰੋਪੜ ਆ ਗਏ। ਰੋਪੜ ਟਿਕੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਰੋਪੜ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਛੋਟਾ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਗਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮਤਾਵਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ
माता सुंदर कौर जी, माता साहिब कौर जी, दासियां ते होर जिहड़ियां बच्चियां सन वो रात रोपड़ दे विच रहियां ने। उत्थे गुरुद्वारा साहिब बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू। तां याद कराया किते आप जी आनंदपुर साहिब जाओ तो रोपड़ कीरतपुर साहिब तो रोपड़ नेड़े आ, जरूर किते दर्शन करके आयो। वो स्थान अजे भी पुरातन उसे प्रकार संभाल के रखिया है। सतगुरु जी रोपड़ दे विच आके टिके ने। रोपड़ तो खरड़, खरड़ तो बनूर, बनूर तो सतगुरु जी पंजोखरा दे विच आ गए। पंजोखरे का इतिहास साहब जी नूं याद है कि इत्थे लाल चंद जिहदे कोल विद्या बहुत सी है सी पंडित, पंडित का अर्थ हुंदा विद्वान। याद रखियो जे पंडित की बाणी गुरु ग्रंथ साहिब विच नहीं जे। पंडित की बाणी 15 भगतां की बाणी है, भट्टां की बाणी है, गुरुआं की बाणी है, गुरु के सिखां की बाणी है, ब्राह्मण की बाणी है। ध्यान दो, ब्राह्मण की बाणी पर पंडित की बाणी नहीं। पंडित का अर्थ है विद्वान, जड़ा अपने आप को विद्वान समझे, जड़ा अपने आप को हौमे ते हंकार दे समझे। सतगुरां ने उहदी बाणी गल भी वेखी है। हरेक बंदा अपनी उम्र के हिसाब के नाल दूजे नूं अपने पैरां ते झुकाउणा चाहुंदा है। असीं भी सोचते भी मेरी काली तो चिट्टी हो गई है, ये बच्चे साडे गोडी हथ लाउण, सानू मत्था टेकण, सानू जी आया आखण। ये नहीं वेखना भी मेरी सुरती कितों तक है तो बच्चे तेरे नूं भी किते गां ना लंघे होण। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू। जीवन का कोई पता नहीं कोई कित्थे खड़ा है। इस थोड़ा हंकार किया, कहन लगा तुहाडा नाम की है? सतगुरां ने आख्या हर कृष्ण साहिब। कहन लगे नाम तो रखवा लिया द्वापर के अवतार का, और उन्होंने गीता रचन की सी। 18 दिन जंग होया, 18 दिन जिहड़ा कुरुक्षेत्र दे विच होया कौरवां ते पांडवां दा। 18 ही अध्याय ने गीता दे, 18 अध्याय ने। रोज़ एक अध्याय सुनाउणा अर्जुन नूं ते जग वास्ते तैयार करना। गीता रची गई। कहन लगे गीता का कोई श्लोक आउंदा तुहानूं पढ़ना भी आउंदा, उहदे अर्थ करके विखाओगे, फिर मैं समझागा भी तुहाडा नाम गुरु हरकृष्ण साहिब जी। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू। सतगुरु आख्या जी ऐसे ही कर देते तो समझेगा गुरु नानक देव जी महाराज की जोत है। जे तू परखी करनी है एवें करके वेख ला, किसी नूं भी तू लाया और उहदे कोलों गीता के अर्थ हो जाणगे। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू। ध्यान दो जी, जिहड़ा बोल मैं हुण कहण लगा, कदी कदी गुरुआं ने परख की है गा अगली गुरियाई देण वास्ते। सतगुरां ने परख की, गुरु नानक देव जी महाराज ने, गुरु अंगद देव जी महाराज ने परख की, इस प्रकार सारिया ने परख की है। कदी कदी सिखा ने गुरु की परख की। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू। कदी गुरु परख करदा सिखा दी, कदी सिख गुरु की परख करते रहे। मक्खण शाह लबाणे ने आख्या महाराज मेरे वस की गल नहीं, इत्थे रह गई बाबा बकाला साहिब विखे। मैं तो हुण 5-5 रुपये रख के मत्था टेक देना, तुसीं जाणो तुहाडी इमानत मैं उन्होंने देनी जिहड़ा मूँहों मंग लवेगा। सिख ने अरदास की है, सिख ने परख की है। सो सतगुरां ने आख्या कि इहनूं सद लियाओ। भाई छज्जू जी ये झूर जाति दे विचों सतगुरां दे गुरु के लंगर वास्ते जल पानी की सेवा, जल लियाउणा दूर तो सतलुज दरिया के कंढे तो या होर कई थावां तो जिथे जल का प्रबंध होना, ये लियाउण का प्रबंध करदा सी। मैं बोल कह देवां, ये परिवार दे विचों प्यारियां दे विचों भाई हिम्मत सिंह जी इस परिवार विचों सन। छज्जू झीर दे परिवार विचों भाई हिम्मत सिंह जी जिहड़े 5 प्यारिਆਂ विचों 10वें सतगुरां दे वेले होए ने, वो इसे परिवार विचों सन। मोती राम महरा जी जिन्हें अपना सारा परिवार कोलू दे विच पिड़ा लिया, सरहंद दे विच छोटे साहिबजादे ते माता जी नूं दुध पियाया, वो भी इसे परिवार विचों सी। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू। बड़ा गुरमुख प्यार लंबे समय तो सतगुरां दे नाल जुड़िया होया। सतगुरु आख्या किसे नूं लाया, ये उन्हों पानी ढोण वाले नूं पकड़ के मैं तुहाडा ही सिख लाया होना, उन्होंने लाया। कईयां दा ख्याल है भी ये वो बहुता सियाणा नहीं सी,
भी जदों गुरु की संगत होनी उदों जल लैण वास्ते तुर पैना। कोई बहुता इतिहास बहुती गुरबत का जाणू नहीं सी, जल पानी दे विच रहिंदा, लंगरां दे विच रहिंदा। उदों स्पीकरां राही कोई सुणिया नहीं सी जांदा। सतगुर आख्या ठीक है। सतगुरां ने अपनी बरकत भरी छड़ी उहदे सीस दे उपर रखी, आप जी नूं याद है। सतगुर आख्या बोल, जो कुछ बोलना चाहुंदा इहदे अर्थ कर देवेगा। ਇਹ जो पंडित ने बोलिया ਉਹਦੇ अर्थ भाई छज्जू जी ने सतक तरीके दे दर कीते। हथ जोड़ के भाई छज्जू जी के चरणों से ढह पिया। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू। लाल चंद इन्हें अपना जनेऊ ला दिता। कहन लगा अज तो मैं गुरु नानक देव जी महाराज का सिख बनना है। सतगुरां ने रब्बी नामदान दे के निरंकार दे नाल जोड़िया। 10वें सतगुरां दे वेले अमृत छकिया। ये लाल चंद तो लाल सिख बनया ते चमकौर की जंग दे विच शहीद होया। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू। ये ओह लाल चंद सी जिहड़ा कदी कदी हंकार दे विच अज हंकार बन गया। सतगुरां ने आख्या होए नमाना जग रहो नानक नदरी पार। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਦਬਾਣਾ बन के जगत दे विच जीवेगा, निरंकार वाहिगुरू परमात्मा संसार दे विच है। इस वास्ते उहदी दद तेरे ते पवेगी, तेरा पार उतारा हो जाएगा। इउं लाल चंद सतगुरां दे शरण दे विच आ गया। हुण घर दे विच नहीं गया, हुण कोई वेद शास्त्रां दा ज्ञान नहीं घोड़दा। हुण सतगुरां दे नाल ये भी दिल्ली नूं चले गया। दिल्ली चले गया नाल सतगुरां दे। सतगुरां दा रस्ता मैं आप जी दे नाल साझा कीता है। जिथे जिथे भी सतगुरु रुके ने अज उत्थे पावन पवित्र स्थान बने हुए ने। ये अग्गों जिस वेले दिल्ली दे विच मजरू टिल्ले दे विच पहुंचे, राजा जय सिंह ना सिंह पहलों भी सी, कौर शब्द पहलों भी सी। सतगुरां ने बिल्कुल पक्के कर दिते कि हरेक सिख दे नाल सिंह लगना है, हरेक बीबी दे नाम दे नाल कौर लगना चाहिए। बोलो सतनाम से। सिंह तो पहलों भी से, कौर शब्द पहलों भी से। इस वार सतगुरां ने परपक्क कर दिता है। दिल्ली दे विच पहुंचे ने। सतगुरां ने वेखिया मजनू टिले तो राजा जय सिंह ये शाहजहान दे वेले ये मुगल बादशाही दे नाल रलिया होया से। शाहजहान बादशाह दे वेले इनू मिर्जे का खिताब दिता से, मिर्जे का खिताब शाहजहान। और इनू दिल्ली दे विच अपने बगले दे विच लै गया। इहदा घर सी अपना। अज वो बंगला साहब हो गया, बंगला साहब हो गया। जिहड़ा बंगला सी पहलों, जिहड़ा घर सी पहलों, जिहड़ा मकान सी अज गुरु दे नाल जुड़ गया ते साहब शब्द लग गया। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू। इहदी पत्नी ने भी सतगुरां दी परख करनी चाहिए भी उम्र छोटी है। वेखिए गुरु नानक देव जी महाराज की जोत है। ये दासियां नूं इकट्ठियां कीता, दासियां दे कपड़े पवा दिते, कईयां नूं राणी बनाता। आप दासियां वाले कपड़े विच पा के ते बैठ गई। सतगुरां नूं आखदी है अपने गोलियां ते दासियां नूं आख्या भी सतगुरां नूं कहो इहदे विचों पटराणी की परख करे भी पटराणी किहड़ी है। सतगुरां ने एक एक करते सोटी रखदे होए आख्या भी पटराणी नहीं, ये भी पटराणी नहीं। तो फिर सतगुरु आख्या भी ये पटराणी। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू। जी पटराणी से हुण कहन लगे पटराणी है। पर सतगुरु आख्या पुत्री पटराणी होके गोली ना बन। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू। पटराणी है तो राजे की घर वाली है। फिर तेनू शौक आ गया दासी बनदा। फिर आखदे ने कुछ समा बाद दे विच सतगुरां दे बचनां नाल दासी बन के रही। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू। दासी बन गए। ऐसी सतगुरां दी कला है, कुदरत कला है। सतगुरां के इहो जिहा कारज नहीं करना, पटराणी ते पटराणी रहनी चाहिए है। सो ये सतगुरु जी उत्थे समा कुछ समा रहे। फिर गरीब नवाज जी जिथे जिथे भी चेचक की बीमारी उन्होंने घरां दे विच गए। ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਦੇ सन उन्हों का संस्कार किया, दूजिया दवा ते दारू लाया। ऐसा करदे करदे सतगुरां ने वेख्या भी बहुतात दे विच बीमारी वध गई है। सतगुरां ने वो बीमारी सारी अपने ते लै ली और दिल्ली के लोगों को सुख दिता। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू। ये दिल्ली का तख्ता है जिहड़ा गुरुआं दे वाल आउंदा सी। मैंने एक बचन याद आ गया। शाहजहां का पुत्र बीमार हो गया, दवाई कितों ना मिले।
शायद मैं कल के दौर में साझा किया से। दिल्ली का राजा है, उहदे कोल दवाई नहीं तो गुरु घर वाल आया दवाई लैण वास्ते। याद रखियो जे अज साडे कोई हस्पताल कोई बहुता वड्डा नहीं, सानू दिल्ली जाना पैंदा, उल्टा खेल हो गया। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू। सो सानू इन्हां गल्लां नूं याद रखना चाहिए। गरीब नवाज सारी चेचक की बीमारी अपने उपर लै ली। सतगुरुआं नूं चेचक की बीमारी हो गई। सतगुरु आख्या उत्थे एक चबच्चा बना दिता, जिहड़ा इहदे विच इशनान करेगा, अंदर दा इशनान करो बाणी दे नाल, तन का इशनान इहदे विच करो। सतगुरां ने दवा ते दारू दे के इत्थों के लोगों नूं सतगुरां ने धीरज दित्ती है। आराम दे विच आए। फिर सतगुरां दा जिहड़ा अंतिम समा नेड़े आ गया, ये बोल आके कि बाबा बसे बकाले गुरु तेग बहादुर जी महाराज के नानके बाबा बकाला साहब विखे सन। उस समय सतगुरु जी इत्थे रहिंदे सन। गुरियाई दे के सतगुरां ने शरीर छड्ड दिता। सतगुरां दा संस्कार भोगल नदी के किनारे ते किया गया। भोगल नदी अज भी उत्थे मौजूद है। भोगल नदी उहदे किनारे ते किया गया। इत्थे ही माता सुंदर कौर का संस्कार किया गया। इत्थे ही माता साहिब कौर जी का किया गया। इत्थे ही भाई मती दास जी, भाई सती दास जी, भाई दयाला जी का किया गया। अनेक होर गुरु के सिख जिहड़े बाबा बंदा सिंह बहादुर के वेले शहीद होए, उन्हां दा भी तमाम सिंघां दा संस्कार भोगल नदी के किनारे उत्थे किया गया। नेड़े हमाजू की कबर बनी हुई, हमांजू की कबर, उत्थे गुरुद्वारा बनिया जिथे सतगुरां दा संस्कार होया, मातावां दा होया। ते जिथे हमांजू की कबर है दिल्ली के राजे की, उत्थे अज कोई जाण नूं तैयार नहीं। उस स्थान उवें वरान बियाबान पड़ा। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू। सतगुरां ने अंतिम समा तकरीबन 7 साल ते 8 महीने की उम्र टोटल हुई है। 5.25 साल की उम्र सी सतगुरां की जदों इन्हां नूं गुरियाई प्राप्त हुई। सन 1664 नूं सतगुरु जी दिल्ली विखे ज्योति जो समा गए। अगली जिहड़ी गुरियाई सी वो सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी महाराज की झोली दे विच पा गए। उम्र छोटी है, सोच कितनी वड्डी है, चोण कितनी वड्डी कीती सतगुरां ने कि आने वाले समय दे विच इन्हां नूं बलिदान देना पैना है। इस वास्ते चोण इहो जी चाहिदी है। उम्र छोटी ते जिहड़ी सुरती है वो बहुत उच्ची है। सो 8वें सतगुरां दा अज प्रकाश दिहाड़ा है। सारी संगत नूं बहुत बहुत बधाई होवे। सतगुरु जी रहमत कर, खुशियां ते खेड़े बख्श करन, मनसा धार जो घरते आवे, साध संग जन मन मटावे, आस मनोत पूर्ण होवे, भेटत गुर दर्शाया जियो। जो जो भावना लैके सतगुरां दे दरबार दे विच पहुंचे ने, सतगुरु जी रहमत करन ते भावनावां पूर्ण करन ते सतगुरु